अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में जुर्म की एक ऐसी दास्तान हम आपको सुनाते हैं जो चंद माह पहले थाना सांदा की हदूद में होती है। यहाँ पर एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देते हैं करीबी रिश्तेदार, जिसमें एक दामाद और एक भांजा शामिल होता है, कि दूध का कारोबार करने पे इन दोनों के दरमियान कोई बात पे तलखी होती है। फिर गोलियां मार के मकतूल को कत्ल कर दिया जाता है। इस पूरे केस में हम आपको प्रोग्राम में ये भी दिखाएंगे कि घर वाले कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कि वजह तनाज़ा क्या थी, क्यों कत्ल किया गया। लेकिन इसी प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि कत्ल करने की असल वजह क्या है, क्यों कत्ल किया गया, कैसे कत्ल किया गया और पुलिस जो है अब तक क्या कुछ कर सकी। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। सांदा के इलाके में जो बेईमाना कत्ल एक होता है 4 माह पहले, अभी तक ना तो उसके मुलजमान गिरफ्तार हो सके हैं और ना ही पुलिस जो है वो किसी नतीजे पर पहुंची है, तफ्तीश को भी मुकम्मल नहीं कर सकी है। बल्कि इस मकतूल के बच्चे पर भी कातलाना हमला किया गया, जो इस मुकदमे का मुद्दई भी है। बेवा हैं मकतूल की और सबसे पहले इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कत्ल किया गया मोहम्मद अली को और वजह क्या थी कत्ल करने की, ये जानने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं वजह तो कोई नहीं सी। अं तो घर गया ना, मैं दुध गर्म कर दे दो तो मैं गई तो दुध गर्म तो दाता साहब जाना दुध लेके। अच्छा। दुध लैके गया तो दुध घरों में लगा कोई बंदा सदन आ गया घर परौने उत्ते परौने। अच्छा, जो कत्ल होया उस दिन कार सी ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੀ कार ही सी ਕਾਰ ਹੀ ਸੁੱਤਾ कितने? अच्छा, सुता सी। ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अच्छा ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸਾਦੇ अच्छा ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ। अच्छा ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਵਾ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਚਲਾ ਜਾ ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਫੌਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, किन्ने कत्ल किया सी? ਉਹ ਤੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ की नाम है उसदा? ਔਰ ਨਾ ਦੱਸ ਆਸਫ अच्छा, आसफ और ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, अच्छा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਿਆਜ। अच्छा ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕੌਣ। ठीक है। की दुश्मनी की सी के घरों बुलाया? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, इस तरह क्यों किसी ਨੂੰ मारेगा? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई पैसे लेने सन किसी को या देने सन? ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। अच्छा, की रोला ਉਹਨੇ सी? ਆਖਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ 2 ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਦੇ। अच्छा ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ठीक है। ਐਸੋ ਰੋਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਚੈਣੀ ਲਈ ਸੀ हाँ ਸੋਨੇ ਦੀ, अच्छा। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਚੈਣੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ किन्ने ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ। किन्ने लोग सन कत्ल करने वाले? ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ। अच्छा ਅਸੀਂ ਭੱਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, अच्छा ਉੱਥੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਭੱਜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮੈਂ 3-4 ਮਾਰੀਆਂ, ਭੱਜ ਗਿਆ। अच्छा उस वक्त उत्थे सी? ਵਕਤ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। अच्छा, वो ताड़ा दमाद है ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੋਲਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ FIR ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ? ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਂਦੇ ਫੜਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦੀ ਫੜਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਫੜਨੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਫੋਨ- ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੱਸ ਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੁਦਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੁਦਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਉੱਥੇ ਨੰਦ ਗਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਆਸਫ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਚੂ ਮਾਰਿਆ ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਣੀ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਲਾਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲ ਐਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਤੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ, ਤੇ 3 ਹੈਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਹੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੇਗੀ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਫੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਖੁਦ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਵੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਸਾਂ ਬਸ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ? ਦਿਓਰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸੀ? ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲੱਗਣੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜੇ। ਖੜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਗਿਆ ਸਾਕ ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਹੇਗਾ ਸੀ ਅਫਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ- ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਤੇਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈਏ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ? ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੀ? ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਭਣੇਵਾ ਸੀ, ਆਪ ਭਤਰੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਕੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, हाँ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਰ। मनी जट को जब कत्ल किया जाता है तो इसके बच्चे उसके जो हैं वो बिल्कुल कारोबार अपने बाप के साथ करते थे और इनको भी अभी तक नहीं पता कि इतना सख्त रिश्तेदारी और इतने करीबी रिश्तेदार जो हैं वो इस कत्ल में क्यों मुलव्विस हुए। मकतूल के बेटे इस केस में जो हैं वो मुद्दई भी हैं, इस पर भी कातलाना हमला हुआ। कुछ मामला जो है वो करीबी रिश्तेदारी का है, लेकिन वजह कत्ल की वजह अनाज जो है वो अभी तक इनको भी नहीं मालूम। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये मुकदमे का मुद्दई भी है और जो मकतूल थे उसका बेटा भी है। आप अपना नाम बताओ। अली और अहमद। अली अहमद। अली अहमद, क्या करते हो आप? मैं दूध का काम करता हूँ पापा के साथ। पापा के साथ दूध का काम करते थे? अच्छा, आप क्या हुआ, पहले आपकी वालदा से बात हुई है कि किस तरह से कत्ल हुआ, कैसे, वजह क्या थी और कौन लोग थे जिन्होंने कत्ल किया? और घर में एक मेरा बनोई था रियाज, अच्छा। और एक पप्पो का बेटा था आसफ पापा, ठीक है। वो 2 बजे आए हैं, एक सामने डेरा है खावड़ का, रात 1 बजे के नहीं दोपहर में? दोपहर 2 ठीक बजे, है। एक सामने खावड़ का डेरा, ठीक है। अब पापा सोए हुए थे, ठीक है। वो उन्होंने जाना, दादा साहब जाना चाय लेके, दूध का काम करते ना, ठीक है, तो उन्होंने लेके जानी चाय का काम, चाय दादा साहब लेके जानी थी। ठीक है, तो रियाज आया बुलाने, ठीक है। अब्बू को हमने बात करनी है, एक खावड़ के डेरे पे भेजो। ठीक है, अब्बू चले गए हैं, ठीक है, ठीक है। उनकी थोड़ी बहस हुई है, ठीक है। तो रियाज ने वो आसफ को बाहर गया, तो उसने आगे फैर मार दी है। अच्छा, फायर मार दिए। तो कौन लोग थे वो, जो कितने लोग थे वहाँ पे? कोई वहाँ थे एक आसफ पापा था, एक ठीक मेरा है, जिनको आपने मुकदमे में नामजद एक किया? रियाज था, ठीक है। एक नाम लूम था, ठीक है,
नामालूम था जी। तो उसकी भी अब शनाख्त हो गई है, वो पता चल गया वो पता लग गया। वो कौन था? वो साजिश है, काटिश है। अच्छा वो है। तो इन्होंने क्या वहाँ पे बात की या आए सिर्फ गोली मार नहीं दी? नहीं, बातचीत की थी अब्बू के क्या- साथ ना, क्या? दूध की। इन्होंने ये हम करते हैं होटलों में काम दूध का ना, ठीक तो है। मेरा बनोई सप्लाई रियाज है देते हैं ना, सप्लाई होटलों में। करते हैं। ठीक है। तो रियाज है ना, वही होटलों में काम करते हैं। रियाज जो ठीक- तुम्हारा बनोई बेनोई है, ठीक ठीक है। ना। उसने कहा आपने मेरे होटल 2-3 ले लिए हैं। अच्छा तो अब्बू ने ये भी बात की, अब्बू ने कहा यार आप होटल वापस ले लो, ठीक है। ऐसे वो उसने पप्पे को बुलाया, ठीक तो है। उन्होंने गोलियां मार दी। तो बहन जो जिसका शोहर है वो छोटी है बहन आपसे कि बड़ी है? जी, वो मैं छोटा हूँ सबसे, अच्छा बहन बड़ी बहनें है। बड़ी है मेरी। अच्छा बड़ी है। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, वो रियाज है और पापा और रियाज दोनों, रियाज को छोड़ने चले गए हैं वो रियाज पप्पे को। ठीक है। फिर पुलिस आई है, अच्छा। नेशनल की है, तो अच्छा। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अच्छा फिर क्या हुआ भाई? फिर एफ आई जाके वही है थाने जाके, अच्छा तो फिर पुलिस ढूंढ रही है उनको, फिर ठीक ढूंढने जा रहे है। हैं। फिर आप मुकदमे के मुद्दई बन गए, फिर आप वहाँ पे जाते रहे, फिर हुआ क्या उसके बाद? पुलिस क्यों अभी तक नहीं पकड़ सकी? कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है? अभी वो असद पप्पे का उसका भाई पकड़ा गया, वो ऐसे पकड़ा गया, उसने किचाड़ी में माम को कोशिश की थी मारने की। अच्छा उसकी- आपको जी मुझे, कैसे? हम भाई निकले जल के कमरे से, हाँ तो मैं था, मेरा छोटा भाई था, सारे कज़न थे, चाचू के बेटे। ठीक है। तो वो उसने- अदालत पेशी के लिए दादा गए थे? पेशी के लिए गए थे ना, तो उसकी माँ बेटे ने ना हमको मारने की कोशिश की थी, ठीक है। और अथा भाई भी हम हुए हैं। अच्छा हाथापाई भी हुए हैं। तो उसके अलावा और कौन था मुलजिम वहाँ पे? वहाँ रियाज था, उसके 2 भाई थे। 2 भाई थे। फिर आपने FIR करवाई? FIR करवाई, उसमें वो 3-4 दिन रहे हैं, तो उसकी ज़मानतें हो गई। जमानतें हो गई? तो फिर उनकी टर्म में अब चल रही हैं, अच्छा इंटर में 4 चाहिए। महीने से टर्म में चल रही है। अच्छा अब जिसने गोलियां मारी थी रियाज वो- ने मारी थी? वो आसफ ने मारी थी, हैं? आसफ ने। आसफ ने। अच्छा वो अब जो वो है वो इश्तिहारी हो गया है? 4-5 महीने इश्तिहारी है अभी, 4-5 उसका कोई पता नहीं लग रहा आपको। किसी को भी? पुलिस मदद कर रही है कि नहीं कर नहीं, रही? पुलिस मदद कर रही है, क्या मदद कर रही है? यही मदद कर रही है, ढूंढ रहे हैं ऐसे, तो अभी ढूंढा नहीं इनसे जा रहा। हाँ तो फिर मदद कैसी हुई? वो पैसे भी मांगती है पुलिस? नहीं, पैसे नहीं मांगते, दिए पैसे किसी को? नहीं ऐसे भी नहीं दिए। किसी को नहीं दिए। कौन है आपका IO कौन है, क्या नाम है उसका? शीशी हाँ आसफ, मलक आसफ, मलिक आसफ। वो थाना सांदे सांदे में बैठा है, वो आपका तफ्तीशी है। जी। ये भाई को देना दे भाई। अच्छा भाई आप बताओ कि क्या हुआ? आप छोटे हैं इससे? जी छोटा भाई है। अच्छा आप बताएं कि ऐसे ही- वाकया तो पहले बताएं, फिर बताएं कि क्यों पुलिस नहीं पकड़ रही है, क्या ऐसे ही वजह? कि अबू घर सोए थे, जो भाई ने कहा है, ठीक है। ऐसे ही अबू को हमने उठाया। कत्ल क्यों किया? कत्ल की वजह कोई नहीं है, सिर्फ बनोई के किसी को साथ। भी नहीं पता घर में? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हमारी किसी का दुश्मनी है, हम कारोबार करने वाले बंदे हैं। मतलब कि अब हम अपने अबू के साथ कारोबार करते थे अपने साफ तरीके से। ठीक है। रोज़ हमने वैसे घर में रूटीन थी, सुबह टाइम हमने उठना था जल्दी अपने है। कारोबार में जाते थे, मुंह ध्यान काम करते। अबू ने कहा कि जो करना है मैंने करना, आपने सिर्फ कारोबार पर अपना ध्यान रखना है, ठीक है। कोई लिंक पे नहीं बोलना, क्योंकि हमने अपना कारोबार ही देखना था। हमारा किसी का दुश्मनी ना, कभी हमने कुछ ऐसा काम ज़िंदगी हमारे महल्ले में देख लें ना, किसी का लड़ाई झगड़ा हमारा किसी के साथ है ही नहीं। ठीक है। हमारे अब्बू का सारा सब कुछ है, मतलब कि कोई किसी के साथ हमारी किसी की रंजिश कोई नहीं है, कोई उनका कोई रिकॉर्ड किसी नहीं के है, ना साथ कभी कोई किसी- किसी का रंजिश नहीं है, हमारी कभी किसी से लड़ाई हुई नहीं है। हाँ। सिर्फ यही है कि मेरा जो बनोई था उसके होटलों में से हमारा थोड़ा सा है था, ये तो बड़ी मामूली सी बात है, मामूली इसके सी लिए मारा बात तो है। नहीं बस जाता। यही है कि उनके साथ हमारा दूध का रंजिश चल रही थी, मेरे बनोई के साथ ही थी जो बात है। वो चला गया मेरे ख्याल से आसफ और पप्पे के पास, जो बड़ा भगवान बना है, उसके पास पता नहीं कितने उसके पर्चे हैं, 28 उसके पर्चे हैं अभी भी। वो उसने पहले भी मर्डर किए हैं पप्पे ने। हाँ। वो अपने आप को बनता है बदमाश। वो आके मेरे ख्याल से उसके पास गया, उसके साथ उसने मशवरा वगैरह किया मेरे बनोई ने, हाँ। उसके साथ मशवरा वगैरह करके ये हुआ है काम, ऐसे नहीं हो सकता। उसके मेरे बनोई का साथ लिया है मेरे अब्बू को मारने के लिए, और कुछ भी नहीं किया। वो ऐसे कारखाने में एक आए हैं, ठीक है। वहाँ बैठ के उन्होंने प्लान वगैरह किया है, फिर उन्होंने भेजा किसी को मेरे अब्बू को बुलाने के लिए। मेरे अब्बू सोए थे, दाता सरकार की हम चाय बनवा रहे थे, मतलब कि लंगर हमारा है, जुमेरात को जान बांटना होता मेरे अब्बू ने हर टाइम, जुमेरात में लंगर बांटते हैं दरबार जाके। अच्छा। ऐसे ही अब्बू चाय बनवा रहे हैं, ऐसे कोई आया, मतलब कि रियाज आया, उसने आके कहा कि अंजन चाचू जी मैं गल करनी है। गल करन गए ने, इंजे अब्बू चला गया कारखाने में। रियाज पे के जरा काका भट्ट दूध वाला है, इसका कारखाना था, वो भी वहाँ मौजूद है, और भी 2 लड़के मौजूद हैं उधर, मतलब मौके में बैठे हैं। और काटे शाह जो अब हुआ है, एक मेरा बनोई रियाज और एक पप्पा, इन्होंने पहले बैठ के रियाज, उन्होंने बैठ के पप्पे ने खाना खुना खाया, इकट्ठे बैठ के चाय वगैरह पी है। मेरे रियाज बनोई ने सब कुछ खाना खुना खिलवाया। सुनने में जो आया है, जो काके भट्ट ने बताया कि वो खाना खुना खा के अंज फिर अब्बू को बुलाना आए ने, पहले खाना खुना खादा बह के सारे ने,
फिर मेरे अब्बू ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ ਨੇ अब्बू ਨੂੰ ਬੁਲਾ के गलबात हो गया, कोल बिठाता रियाज दे आपस से बहस कर रहे हैं। मेरा बनोई जिसके साथ हमारी कारोबार रंजिश है थी, तो पप्पा उस आसफ और पप्पा यहाँ पास बैठा है, इंज गल्लां सुन रहा, कोई गल नहीं कर रहा, इंज सुन रहा गल्लां, तो कभी बाहर जाता कभी अंदर जाता है, सारे वेख रहे हैं। अब्बू भी मेरा वेख रहा है कि अंदर बाहर क्यों जा रहे हैं, इंसान देखता है। अब उसने नहीं पता, उसके पास पिस्टल आया था, उसने लोड करने के लिए गया है। अच्छा। उसने पिस्टल लोड करके ऐसे इतने दूर खड़ा होके ऐसे मेरे अब्बू बैठे हैं, चारपाई पे बैठे हैं। उन्हें क्या रियाज मुकदी कि नहीं मुकदी, मैंने कहा मुका दे, इंज मुका गोलियाँ मारती हैं। 4-5 फायर लगे हैं, ऐसे लगे हैं। जब हम आए हैं पापा ख़त्म हुए। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस वगैरह ये कह रहे हैं हम मदद करते हैं आपकी, क्योंकि पुलिस को हम जाके कहते हैं, रोते हैं जाके। अब अभी भी आपके साथ भी अपील है, आज ही पंजाब के आगे अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमारा इतनी उम्र नहीं, एज में ना हमारी इतनी एज है जो हमें मुसीबतें पड़ गई हैं। अब हम ये उधर गए हैं कोर्ट कचहरी पे, वहाँ फिर धमकियाँ लग रही हैं। पापा ने हमें बड़ा तंग किया, या मेरे चाचू को भी धमकियाँ लगा रहा है, तुम्हें भी मार देना है, सबको मार देना है। इतना पुआन हो गया, सारे ने मार देगा। कैसे धमकियाँ देता है? धमकियाँ यही उसकी माँ आके कहती है। अच्छा, तो आपने कभी थाने में दरख्वास्त दी है? हमने दरख्वास्त नहीं दी, हमने आज दरख्वास्त भी दी है, मतलब कि थाने भी दिया है, सलामपुर थाने भी दरख्वास्त दी है। इसकी माँ ने हमारे साथ बहस शुरू किया, पप्पे की माँ में कचहरी में चपेड़े मारनी शुरू कर दी हैं। तो कहीं तुम भी फैर मरवा दें, दोवां मुंडिया तुम मरवाना है उनमें उनके को। अच्छा, ए पर्चे पुर्चे वापस लो। ए पप्पे ने बड़ा तंग किया है बस। पप्पे के साथ क्या उसका कोई रंजिश नहीं आती। मेरे अब्बू के साथ उसकी ने शादी में जाना था, पप्पे ने सोने की चैन लेके, सैनिक सोने की चैन ली थी। बस मेरा अब्बू हफ्ता पहले से चैन मांगने गया सोने की, वो उसने दी ही नहीं। उसके साथ उसने कहा कि मैं चैन मांगेगा, मैं तंग करेगा, मैं कैसे दूँ, अनु मुका ही देने हैं। जब मेरे पापा को कत्ल किया, मेरे पापा के पास पैसे आए थे, वो पैसे भी निकाल के ले गए। कितने पैसे थे ये नहीं पता, वैसे मेरे पापा पास कारोबारी बंदे थे, उनके पास 2-3 लाख एक्स्ट्रा उनके जेब में होता है, पूरा महल्ला गवाही देने के लिए तैयार है। वो 2-3 लाख मार के पापा लेके गया। ये मेरे हमें इतना यकीन है, क्योंकि मेरे पापा को पैसे हर टाइम होते हैं। कारोबारी इंसान के पास पैसे लाजमी, हमें पता है, हमारा सारा उनके साथ ज़िंदगी बदल गई है। मेरे अब्बू के पास 2-3 लाख रुपया लाजमी होता है। ठीक है, तो वो मेरे अब्बू को मार के 2-3 लाख रुपया भी निकाल के लेके गए हैं। हमें पैसों से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि हमें पापे से बहुत खतरा है। हमारे हम अपना कारोबार आसानी से नहीं कर रहे, हमें बहुत परेशानी है उसकी वजह से। हम चाहते हैं पापा पकड़ा जाए बहुत जल्द। मकतूल की बेटी है राबिया, जो जिसके शोहर के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि इस कत्ल में वो भी मुलविस है। FIR भी उसके ऊपर नामजद हुई है। इसी घर में वो अपने वालदा के साथ और भाइयों के साथ रहती है। राबिया से पूछते हैं कि इसके वालिद को जो है वो कौन धमकियां देता था, क्या इसके साथ उसका मामला था, ये थोड़ा सा राबिया से पूछते हैं। राबिया, आप बहन बताओ कि आपकी वालिद को जो है वो कौन धमकियां देता था, और आपके शोहर के ऊपर भी इल्ज़ाम है। पहले आप ये बताएं कि वो मारने वाले कौन लोग थे और क्या था उनको गुस्सा आपके वालिद के उसका साथ? काफ़ी देर से हमारे घर रंजिश थी, शुरू से, किसकी? बचपन से। पप्पे की। पप्पे की? पप्पा कौन है? पप्पा मेरे फुप्पो का बेटा है। आपकी फुफ्फो का बेटा? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। फिर काफ़ी देर से उसने पहले ये भी माइक मेरे- ज़रा करीब कर लें। पहले भी उसने मेरे अब्बू पे हमला किया हुआ है, और मेरे अच्छा। चाचू को भी फैल लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद इनकी सुलह हो गई। कितने साल पहले? ये 8 साल पहले की बात है अच्छा, 8 साल पहले। जी। ठीक है, तब किस बात पे तब- लड़ाई हुई थी? तब भी ये ऐसे कुछ मामले, इन बड़ों के मामला थे कि जगहों के, ऐसे कुछ दूध वगैरह के, ऐसे कि उधर जाना, उधर से मेरे अब्बू की जगह वगैरह हर चीज़ मौजूद थी, जिसकी इनकी वजह से मेरे अब्बू ने वहाँ से हर चीज़ अपने घर की बेच दी कि मेरे ये पीछे, क्योंकि जब तक ये मुझे ऐसे कहते रहेंगे कि ये बार बार वैसे में शरारतें करते थे मेरे, है। कि ऐसे धमकियाँ लगाना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, इसी वजह से काफ़ी देर फिर कुछ बाद इनकी ना ये पप्पे को फैल लगे कि इसने कहा मेरे अब्बू को कि मेरी गवाहियाँ दो, ठीक है, जिसकी वजह से अब्बू कहता है मेरी गवाही देने का हक नहीं बनता, जिसने मारा उसके जाकर खुद उसके निबड़ो। ठीक है। इसने मेरे चाचू को भी बड़ा धमकियाँ लगाते रहे, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी गवाहियाँ दो। ये मेरे चाचू को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जलील ये किया आप हुआ है। पापा आपका रिश्तेदार भी है कोई? जी। अच्छा, तो मेरे फूफो चाचू का को भी, बेटा है। हाँ जी, मेरे चाचू को भी बहुत ज़्यादा उसने जलील किया हुआ है। मेरे उनके बच्चों को भी, वहाँ उनकी बच्चों की दुकानें, उनको भी बहुत तंग करता था हर बात ठीक- पे, ये वो ठीक कि हम है। तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे। पर अभी ये थोड़े दिन पहले ये मेरी दादो गई हैं हमारी सुलह करवाने के लिए। ये चेन का रोला था, जैसे मेरे भाई ने बताया है ठीक है, कि मैं तुम लोग की ना सुलह करवा देती हूँ। पर उधर जाके क्या कुछ हुआ है ये हमें नहीं पता, कि दादो ने ये घर से यही कह के गई थी मैं तुम लोग की सुलह करवाने जा रही हूँ। ठीक है। इसके बाद दादू अच्छा, उस आप दिन ये आई बताएं है कि जिस दिन जब- मेरे अब्बू फोत हो चुके थे। दादू उस दिन आई हैं।
अच्छा, अब ये बताएं कि जिस दिन आपके अब्बू को कत्ल किया जाता है जी उस दिन क्या होता है, आप सबसे पहले सुना जाती हैं? जी काका भट्ट आया बताने के लिए। अच्छा, काका भट्ट कौन है? काका भट्ट इधर ये दूध वाला, ठीक वो ही है। मेरे अब्बू को लेकर गया है कि कुछ बंदे तो आपको मिलने के लिए आए हैं, ठीक ऐसे है, कह के। उसने पैगाम दिया। जी वही लेकर गया है और वो ही आकर बताने आया। सबसे नीचे पहले मैं गई हूँ, ठीक है, उसने ये बताया है। आप गई तो क्या था वहाँ पे? मेरे अब्बू कोई भी नहीं था, मेरे अब्बू खून से लथपथ पड़े हुए थे। ठीक है, हम्म। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वे पुलिस वगैरह आई है और ठीक है। उन्होंने आकर सब ये भाई वगैरह आए हैं मेरे। ठीक है, सबसे पहले मैं गई हूँ, मेरी अम्मी थी, मेरी बहन थी, उसके ठीक बाद मेरे है। चाचू वगैरह आ गए हैं। ठीक फिर मेरे है। भाई हवेली गए हुए थे, वहाँ से वो भी अब भागते भागते आ गए हैं। ठीक है। तो सारे यहाँ से ऐसे फिर पुलिस वाले आए हैं तो वो मेरे अब्बू की ठीक लाश है। को ले गए। अच्छा, अब आपका जो शोहर है उसके ऊपर भी नामजद FIR जी है। यकीनन वो आपके वालिद के साथ उसका कोई तनाज़ा चल रहा था कि वो दूध जो जी, होटल थे। पर मेरे शोहर का यही कहना है कि मैं इस पूरे मामले में ना मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। अच्छा, वो कहता है, हाँ, वो मुल्ज़िम कहता हमेशा ऐसे ही कहता है कि मैं वो बेकसूर हूँ। उसने यही कहा मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, किसी बात में मेरा कसूर नहीं। मुझसे जितनी मर्जी, मुझे बच्चों की कसम, ठीक है, मुझे कुरान पाक की कसम ठीक कि है। मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे फंसाया गया, मुझे उसने फंसाया है, किसने? पप्पे ने। ठीक है। मुझे अच्छा, पप्पे ने फंसाया है। वो साथ तो था जब कत्ल हुआ? वो मेरे अब्बू के पास ज़रूर बैठा हुआ था, बातें चल रही थी दूध वाली, ठीक है। पर कहता मेरा मारने में कोई हाथ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने क्यों मारना था अपने चाचू को? मेरा चाचू मेरे बाप की तरह, मैं क्यों उसको मारूंगा? ठीक है, मेरे हस्बैंड का यही कहना, मुझे अपने बच्चों की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो शोहर है वो आपसे राब्ते में है, कभी करता है फ़ोन शोन? कभी नहीं, इतना नहीं है कि ज़्यादा मीन्स के। ठीक है, अगर वो बेगुनाह है तो फिर तो यकीनन वो पेश हो जाए पुलिस के पास, और पुलिस जो है वो तमाम जो शवाहिद हैं, जो गवाह हैं, इनके उसके भाइयों बाद को उसको भी- बेगुनाह हो जाएगा। भाइयों को भी इन्होंने जानबूझ के, उसके भाइयों का भी कोई कसूर नहीं है। किसके भाइयों का? उनके भाइयों के भी नाम दर्ज हैं इसमें, मेरे ठीक है। हस्बैंड के। उनके भाइयों का भी कोई कसूर नहीं है, वो ठीक है। बेचारे बेकसूर हैं, वो अपने ठीक है। घर से बेघर हुए। बट मेरी यही इल्तिजा है कि जो जिसने गुनाह किया उसको सज़ा दी जाए, बाकी बिल्कुल। बेगुनाहों को सज़ा ना दिलाई ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। आपके भाई भी ये कहते हैं कि अगर जिसने भी जो किया है तो वो पेश हो अदालत में, उसको बेगुनाह किए करेगी पुलिस की तफ्तीश, उसे बेगुनाह करेगी। तो आप भी अपने शोर से कहें कि वो पेश हो जाए, तो जो भी कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा वो हो जाएगा। फिर वो पेश क्यों नहीं होता, क्यों भागा हुआ है? भागा नहीं हुआ, वो अदालत के ज़रिए अपनी कार्रवाई आते हैं, तारीख पे आते हैं। वो तीनों भाई आ रहे हैं। अच्छा जी अच्छा, आपको ये आपके वालिद को कत्ल कर दिया, दूसरी तरफ आपके शोहर को जो है वो कातिल करार दिया काके गया। भट्ट को अंकल जी सब कुछ पता है, उसके सामने सब कुछ वाक़या हुआ है। 4-5 बंदे हो हैं, काटे शाह एक नाम उसका वो भी है, और बाकी 3-4 लड़के और भी हैं। अच्छा, जी, जहाँ वहाँ हम मौके पर मौजूद थे कि जिसने कि क्या बातें हो रही थी, क्या कुछ हो रहा, सब कुछ उनको पता है। ठीक है। आपके वालिद को कत्ल किया गया, हाँ जी, इधर कैमरे में बेदर्दी देखें और से- बताएं क्या चाहती हैं। अब ये बेदर्दी से करीब मैं करें। यही चाहती हूँ उधर देख कि के बात जिस पप्पे को सख्त सज़ा दी जाए, जिसने मेरे पापा को जालिम से बेदर्दी से मारा है, बेदर्दी से उसे कत्ल किया है उसने, और बेगुनाहों को सज़ा ना दी जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसने कुछ किया उसको बस सज़ा दी जाए। इस पूरे प्रोग्राम में हमने आपको जो लवाहिकीन से बात करवाई तो उसमें यही उनका मौक़िफ़ था कि उन्हें नहीं मालूम कि वजह अनात कत्ल की क्या है। एक करीबी रिश्तेदार हैं जो मकतूल के, इन्होंने हमें तफसील बतानी है कि असल वजह क्या थी, क्यों भांजा जान का दुश्मन हो गया, क्यों दामाद जो है मन्नी जट के जान का दुश्मन हो गया, क्या वजूहात थी, ये इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। हाजी साहब, आपका नाम क्या है पूरा? ना जी, हाजी शौकत अली। हाजी शौकत अली। हाजी साहब, ए दसो कि क्यों मन्नी जट नूं कतल किया गया? दमाद पुत्रा वर्गा होंदा है, भांजा भी पुत्रा वर्गा होंदा है, तो क्यों किया? मसला ये हैगा है कि एक कतल बनदा नहीं सी जेड़ा इन्हां कीता है, ठीक है, और बहुत ही जेड़ा ना एक जुल्म दी अखीर जेड़ा दिल ते पत्थर रख के करने वाला काम है।
ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਜੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣ, ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਗਿਆ, ਮੰਨੀ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਮੁਫਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਮਰਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਭੈਣ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ 2-2.5 ਤੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨ ਸ਼ੈਨ ਸੀ ਗਲੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੈਨ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਇੱਧਰ ਦਮਾਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ। ਠੀਕ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ। ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁੱਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਹਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲੋ ਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਖੋਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਲੈ ਲੈਵੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं नहीं तुम बदमाशी की थी, तू ये की मैं तेन वेख लाँगा, मैं तेन ये कराँगा वो कराँगा। असल च इन्हां दा फिर हो जाता दोवां दा गठ जोड़ के, वो भी नहीं बोलता मामे नाल ठीक हो गया। ते भतीजा भी नहीं बोलता एक मामे भतीजा नाल। ते एक भांजा दोनों इकट्ठे हो जाते ने, इकट्ठे हो मामे और जाते चाचे ने। दे और सोहरे दे वजह खिलाफ। सिर्फ इन्नी है थोड़ी जी रंजिश दी, ठीक है। उन्हें ना इनू भी बुलाना छड़ दिता ते ओनू भी बुलाना छड़ अच्छा एक इत्थे होर सवाल है, जी ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜੀ। ਜੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ असल च ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ। ਹੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੈਸਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2-4 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਦਿਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਛੱਡਣ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਗਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੁਖਬਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ये वो असल वजह थी जो कत्ल की वजह, ये भी हाजी साहब ने बता दी। कत्ल के बाद मुलजिम क्यों नहीं पकड़े गए, ये भी उन्होंने बता दिया। और घर में मकतूल की जो बेटी है और मुलजिम की बीवी है वो क्या किरदार अदा कर रही है, ये भी इन्होंने बता दिया। मकतूल मन्नी जट का जो भाई है उसने इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काफ़ी सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। सांदा इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की कारकर्दगी इस केस के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो है। उस मकतूल के भाई का क्या कहना है, पहले ये सुनिए। सर हमारे साथ कोई तामन नहीं हो रहा, हमारा भाई बेगुनाह, बिल्कुल बेगुनाह था। इससे आसफ उर्फ पप्पे ने पहले 8 साल पहले मुझे गोलियां मारी था, मुझे अभी निशान है, और सलामपुर थाने में मेरी FIR भी है। सर कोई साड़ा लैन देन, सिर्फ ये कहते सन कि सानू पैसे दिती जाओ तो असीं खाई जाइए, वेले सन, इन्हां दा कारोबार कोई नहीं सी, कोई कारोबार नहीं सी ना, सिर्फ है आना उहदा माशाअल्लाह मेरे भाई दा बहुत कारोबार सी, दे 10,000 दे 20,000 इहनूं धमकी ला के लै जाना। वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे सन, वो अपना कहंदा चलो कोई नहीं, मेरे भणेवे ही ने, पर भणेवे ने साडे नाल खीर कर छड्डी सर, और गोलियां बेगुनाह बिल्कुल उन्होंने मार दिता है। पप्पे ने ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖੀਏ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖੇ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ मेरा भाई नहीं हैगा। सानू मैनू मेरे बच्चे भी उन्ने प्यारे नहीं जिन्ने मेरे आ बच्चे प्यारे ने। तो सारे ने तो हमला हो गया उत्थे, साडी जो भी होया सलामपुर थाने में मैनू कहता मेरी भैन ने कि मैनू इत्थे बागी तो जाके सौना चाहिए, असीं तेरे सिर ते आ जाना। मैं सर अल्लाह की आस लगा फिर चलो जी, मेरी भाई की घट गई सी, मेरी भी घट गई, कोई पता नहीं, अल्लाह वारस है। तो सर असीं अपील नवा कोर्ट DSP दे पेश होए हाँ, उन्हें कहा जी तुसीं जाओ मलका आसफ कोल, मलका आसफ मुलजम क्यों नहीं फड़दा। मैं मलका आसफ नूं आण के क्या, उन्हें कहा जी वो नफरी भेजदा मैं फड़ लैंदा। कोई भी उस तो बाद मेरा भतीजा जाता है, अल्लाह जाने उन्होंने की कह देंगे ने की नहीं, वो जाना तो मदई ने ना। तो सारे नाल कोई अजे तक साडा ना मुलजम जिहड़ा असल मुलजम है, कोई सानू सुर पता नहीं लग रहा। सानू 24 घंटे का खतरा ही खतरा है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता सानू सर खतरा ही खतरा है। मकतूल मन्नी जट के भाई ने क्या कहा, ये आपने उसकी ज़ुबानी सुना। इसके बाद हमने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो नवीद हैं उनसे हमने बात की, बल्कि पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में गए हुए हैं, किसी ज़रूरी मीटिंग में गए हुए हैं। यकीनन जब पुलिस की मसरूफियत मुख्तलिफ़ किस्म की होती है तो वो मीटिंग में होते हैं, लेकिन हम इस केस की नोयत जानना चाहते थे कि 4 माह गुजरने के बावजूद अगर किसी मुलजिम को, सिवाय एक मुलजिम को जो मरकज़ी नहीं है, क्यों पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकी है। क्योंकि मकतूल के भाई ने और मकतूल के अहले खाना ने बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सांदा पर लगाए हैं
उन्होंने कहा है कि किसी गर्ज की वजह से शायद पुलिस मुलजमान को गिरफ़्तार नहीं कर रही। ये लवाहिकीन का इल्ज़ाम है और लवाहिकीन जो है इस तरह के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। कभी कभार ये चीज़ें सच भी होती हैं और गलत भी होती हैं, लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने फिर हमारी मुलाकात करवाई वो सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ से, जो आईओ हैं इस केस के। उनसे हमने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा जी सारे मुलज़मों को हमने गुनाहगार कर दिया है, इश्तिहारी कर दिया है, लेकिन अभी तक गिरफ़्तार हम सिर्फ एक मुलज़िम को कर सके हैं। इसमें एक बड़ी टेक्निकल सी बात है। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो बड़े केस को सॉल्व करने के दावे भी करती है और बड़ा मीडिया पर प्रचार भी करती है, लेकिन इसमें एक मुलज़िम ऐसा है जिसने वहाँ पे छुरियों के वार किए मुकदमे के मुद्दई के ऊपर हाताए अदालत में कोशिश की, लेकिन वो महफूज रहा। लेकिन पुलिस जो है वो 324 की दफ़ात के तहत थाना इस्लामपुरा में FIR भी दर्ज कर लेती है। जब उस मुलज़िम को पकड़ा जाता है 2-3 दिन वो हवालात में रहता है और उसके बाद फिर वो उसको पुलिस 302 में भी हो चुके नामजद मुलज़िम होता है, फिर उस केस में भी उसको गिरफ़्तार करके उसको जुडिशल कर देती है। वो मुलज़िम हाता अदालत में इसलिए आता है कि वो अपनी ज़मानत करवाने के लिए, इंटरिम बेल को एक्सटेंड करवाने के लिए आता है। इसमें पुलिस की कोई कारकर्दगी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सांदा पुलिस की कि उन्होंने मुलज़िम पकड़ लिया। वो मुलज़िम वो जो है ख़ुद ही उस दायरा कार में पुलिस के जो है उसमें आ गया था और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हो या आईओ हो, ये उस वक्त तक मौक़िफ़ अपना या बात इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल ना हो नहीं बताते हैं, या ज़्यादातर ये होता है कि किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में कुछ सवाल उठ रहे हों, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान हो, तो फिर ऐसी चीज़ों के ऊपर पर्दा ही डाला जाता है, जैसे कि इसमें भी डाला गया। अब दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं CCPO लाहौर साहब की। CCPO लाहौर चूँकि बड़े सख्त पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं और अपनी हर मीटिंग में ख़ासकर हीनियस क्राइम जिसमें 302 की दफ़ात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात भी शामिल होते हैं, उस पर वो लाजमी पूछते हैं कि इस केस का क्या बना, फ़लाने केस का क्या बना, डकैती 324, 302 इस तरह के केसों में जो हीनियस क्राइम कहलाते हैं उसमें क्या बना, तो वो ज़रूर पूछते हैं। पता नहीं शायद उनकी मसरूफियत होगी, इस वजह से वो इस केस के ऊपर ज़्यादा फोकस CCPO साहब नहीं करवा सके हैं, या SP साहब से या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से वो नहीं पूछ सके हैं कि 4 माह गुजर गए हैं, एक शख्स को उसके घर से बुलाकर घर की दहलीज़ के बाहर कत्ल कर दिया जाता है, चाहे वो रिश्तेदार ही हैं, चाहे वो उनके अजीज़ों का रबी हैं, तो वो मुलज़िम क्यों नहीं पकड़े गए? 5 से 6 लोग जो है वो बताए जाते हैं जिनकी अदावत थी, तो किसी को नहीं पकड़ा गया। CCPO साहब इस केस के बारे में नहीं पूछ सके। अदरवाइज़ रोड पेंडिंग हो या कोई गिरफ़्तारी किसी की अल्तवा में रखनी हो, कोई 395 का पर्चा क्यों दर्ज हुआ, सही था, दुरुस्त था, इस तमाम के ऊपर CCPO साहब बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सांदा जो हैं उसके ऊपर जो CCPO साहब की नज़र मेरा ख्याल है थोड़ी सी ओवरलुक हो गई है, वो उसको देख नहीं सके हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में केस में क्या हुआ है। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि पुलिस के ऊपर या इन्वेस्टिगेशन के ऊपर तनकीद करें, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि निशानदेही करें। अगर किसी केस में जो CCPO साहब का अपना भी वो मौक़िफ़ यही है कि अगर FIR दर्ज हो गई है, मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं हुए तो उसे गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, तो हम निशानदेही कर रहे हैं कि सांदा पुलिस की भी ये कारकर्दगी है। वैसे वहाँ पे जो इंचार्ज हैं उनका साबका रिकॉर्ड भी कुछ इसी तरह से ही है कि गिरफ़्तारियाँ हों या मुलज़मान की पकड़ धकड़ हो, उसमें ताख़ीर ही होती है। ये अब यकीनन फिर कभी मौका मिला तो उनका मौक़िफ़ इसमें ज़रूर लेंगे। जो फ़ोन पे और जो वहाँ पे आईओ थे पुलिस स्टेशन में, उन्होंने हमें यही बताया कि हमने इसमें तमाम लोगों को गुनहगार कर दिया और बहुत जल्द मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लेंगे। ये एक रवायती सा फ़िक्रा है जो हमेशा पुलिस वाले बोलते हैं कि बहुत जल्द जो है गिरफ़्तार कर लेंगे और करारवा की सजा दिलवाएंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई का अमल जारी है। ये पुलिस की मौक़िफ़ के हवाले से हमने बात की और उसमें CCPO साहब यकीनन इस पर कोई ना कोई
एक्शन ले गए, उनकी नज़र से ये केस गुजरेगा, या इस प्रोग्राम की वसादत से अगर उनको पता चला कि ये 4 माह से एक मुलज़म जो एक मकतूल के जो कातिल हैं वो नहीं पकड़े गए, और एक मकतूल का बेटा जो मुकदमे का मुद्दई है उसके ऊपर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं, तो वो भी मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे हैं, इसकी यकीनन कोई ना कोई जो है वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी ज़रूर होगी। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सांदा के इलाके में मन्नी जाट को कत्ल किया जाता है। घर वाले क्यों किसी वजह के बारे में ये नहीं जानते कि कत्ल क्यों किया गया, लेकिन असल हक़ाइक़ हमने आपको इस प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश की। पुलिस का मौक़िफ़ भी आपको दिखाया, लवाहिकीन का मौक़िफ़ भी आपको दिखाया, लेकिन लवाहिकीन में एक ऐसी बदकिस्मत बच्ची भी है जिसका बाप तो कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन कत्ल करने वाला उसका शोहर भी उसमें शामिल होता है। ये सब तफसील आपको दिखाई आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।